Amada Pratap Singh, you're joining us on News X. The Twisha Sharma death case has taken another dramatic turn after a series of explosive claims were made by her mother-in-law, retired Judge Giribala Singh. Addressing a press briefing, Giribala Singh leveled several serious allegations about Twisha's personal life, her relationship with her parents and her mental state in the days leading up to her death. Singh claimed that Twisha's parents had not visited her for the last 5 months and accused them of benefiting from her career in the glamour industry. She further alleged that Twisha was pushed into the glamour world at a young age and was later disowned by her family. The retired judge also claimed that Twisha had liberal views and alleged that her behavior changed drastically after she learned about her pregnancy. According to Giribala Singh, Twisha did not want to continue the pregnancy and was under severe emotional distress. She further alleged that Twisha was seen harming herself, crying and saying she could not continue living like this. Giribala Singh claimed the family even offered to arrange travel for Twisha if she wanted to leave the house with dignity. In a statement, Singh also said Twisha would often take impulsive decisions on her own and claimed that her mother was aware of certain developments but did not stay back for long during her visit. Now we are getting breaking news, in fact, also coming in now on the broadcast. The family has sought a fresh post-mortem examination through a local court. According to their lawyer, the family's lawyer, Anurag Srivastava, has said, "We have moved an application for a second post-mortem of Twisha before the concerned magistrate in Bhopal." मीनाक्षी शर्मा, Twisha Sharma's cousin, is joining us on the broadcast. मीनाक्षी, स्वागत है आपका न्यूज़ एक्स और इंडिया न्यूज़ पर. Reportedly, you are not happy with the post-mortem. Your family is seeking a second post-mortem to be conducted. मीनाक्षी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर. मीनाक्षी, खबर ये आ रही है कि परिवार जो है वो पहले पोस्टमार्टम से संतुष्ट नहीं है, शायद एक और पोस्टमार्टम चाहता है. एक एप्लीकेशन भी मूव किया गया है लोकल कोर्ट के थ्रू. फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अभी हम लोग सेटिस्फाई नहीं है. हम लोग यहाँ पे 7 डेज हो चुके हैं हमें, और डेड बॉडी भी अभी हॉस्पिटल में है. एंड अभी हमें सेकंड पीएम का हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज वी हैव सम डाउट. एंड हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं वो निष्पक्ष नहीं हो रही हैं, तो इसलिए वी रिक्वेस्टेड फॉर सेकंड पीएम इन दिल्ली एम्स. जी, और शायद आपने अब कोर्ट को भी मूव किया है, परिवार ने कोर्ट को भी मूव किया है, तो देखना होगा वो क्या होता है आगे. किस फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं, किस चीज़ से आप संतुष्ट नहीं हैं? क्या आपको लगता है दबाव से किया गया है वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है अब तक जो है? फिर देखिए, जब जो पीएम की जो फर्स्ट रिपोर्ट आई थी उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ था कि आपका परिचय आपका परिचय मैं जान सकता हूँ? ट्विशा की भाभी हूँ. ओके जी, बताइए मैम. जिस रूप से या जिस भी फीडबैक वो बोल रहे हैं उसके थ्रू ये हुआ है, वो जब फर्स्ट पीएम हुआ उस टाइम पे वो ऑब्जेक्ट अवेलेबल ही नहीं था. दैट इज वन पॉइंट. सेकेंड इज, जिस हिसाब से शुरू से सब जगह हम देखते आ रहे हैं और एम्स में भी हमें पता चला है कि उनके रिलेटिव्स हैं, so we want a second PM to be done in Delhi AIIMS. Okay, which is what you are insisting on, absolutely. अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आप तीनों से. आप भाभी हैं, आप कज़न हैं, और तीसरी जो मेहमान हैं उनका परिचय? रिलेटिव है. आप भी रिलेटिव है, ठीक है. मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ही अब दुख की घड़ी है आपके परिवार के लिए और आप सब हौसला रख रहे हैं. मगर आप सब ने सुना होगा कि आपके जो इन लॉज हैं उन्होंने क्या कहा है. त्विशा के मदर इन लॉ का स्टेटमेंट आया था, बहुत ही विस्तार से उन्होंने मीडिया को अपना वर्जन बताया था कि त्विशा के माँ बाप जो हैं वो ख्याल नहीं रख रहे थे, 6 महीने से वहाँ आए नहीं थे. उनकी माँ आई थी कुछ समय के लिए, फिर चली गई, और वह कह रहे थे कि रेगुलरली बातचीत भी नहीं उनसे करते थे. वह कह रहे हैं कि ग्लैमर वर्ल्ड में उन्होंने बहुत ही यंग एज पे उनको ढकेल दिया था, उसके बाद उनको छोड़ दिया था उसे. वह उन्होंने कहा था कि लिबरल व्यूज़ थे उसके. उन्होंने आई थिंक पर्सनल लाइफ पे भी कुछ और सवाल उठाए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स कहा है उसके, शायद ड्रग्स लेने के लिए या सिगरेट पीने के लिए या ये सब के भी बारे में बात की है उन्होंने भी ये भी कहा है कि जब से उनको पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो उसके बाद हर बिहेवियर चेंज्ड. ना वो स्टेटमेंट आपने विस्तार से सुना होगा, उस पर आप क्या कहेंगे, उसका काउंटर आप क्या देंगे? आप तीनों से पूछो क्योंकि आप अपनी भाभी को, आपकी कजन को, आपकी रिलेटिव को बहुत अच्छे से आप जानते थे, तो आप तीनों बताइए सच क्या है.
सर देखिए, जहां तक लिबरल होने का सवाल है, वो ये बोल रही है कि वो बहुत लिबरल थी, तो और इसमें इसमें इससे कोई खराबी प्रॉब्लम बात नहीं, उसमें कोई खराबी नहीं है, एग्जैक्टली में प्लीज। कोई खराब बात नहीं है। एंड दैट इज अ प्लस पॉइंट, बिकॉज उसने लाइफ में इतना कुछ अचीव अचीव करके वो बैठी हुई थी बच्ची, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सेकंड, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि द पेरेंट्स वर अर्निंग मनी व्हेन शी वाज अनमैरिड आउट ऑफ हर, एंड नाउ व्हेन शी इज डेड दे वांट सम मनी। सो द पॉइंट इज, आप इस कितना गिरोगे, किस लेवल तक जाके आप ये बोलोगे? मतलब आप ये बोल रहे हो, एक माँ बाप जो इधर से उधर भटक भटक के अपनी बेटी के इंसाफ के लिए न्याय कर रहे हैं, वो भी हमें मांग रहे हैं। वो भी हम क्यों मांग रहे हैं? बिकॉज अगर ये सब कुछ प्रोसेस से स्पीड में चला होता तो हमें इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं होती, शायद आज हम अपनी बेटी का क्रिमेशन करके बैठे होते। आप उन पेरेंट्स के लिए आप ये बोल रहे हो कि हम इससे पैसा कमाना चाह रहे हैं? ये एक पढ़ी लिखी महिला का तो स्टेटमेंट नहीं हो सकता सर। वो तो पूर्व सेकंड, जज, आप वो तो के पूर्व लिए जज अब्यूज रह चुकी हैं बोल रहे हो कि जी। वो ड्रग लेती थी। उनका जो ब्लड टेस्ट हुआ है सर पोस्टमार्टम में, उसमें उसमें आया है कि उसमें कोई भी ड्रग का एविडेंस नहीं आया है। तो ये वाला क्लेम भी उनका एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। हमारा पॉइंट ये है कि जब जो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिया है उसमें पहले ट्विशा ऊपर जा रही है, उसके बाद एक और पर्सन ऊपर गया है, और ऊपर से 3 लोग उनकी बॉडी को लेके आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट उनकी मदर का बहुत कोल्ड रेस्पॉन्स था। वो अगर आपको अपनी बच्ची से इतना प्यार था, आप जो क्लेम कर रहे हो और पब्लिकली जो आप बोल रहे हो कि आप उनको बहुत प्यार कर रहे हो, तो आपका इतना भी दिल कच्चा नहीं है कि आप अपनी बच्ची को, वो जो बच्ची स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ के लिए, जो वो लोग कोट कर रहे हैं कि सीपीआर दे रहे थे, आप उनको देख भी नहीं रहे हो, आप सीधे अपने कमरे में चले गए। हार्टलेस हो क्या आप बिल्कुल, या फिर आपको अटैचमेंट ही नहीं है? सेकंड इज, जब सीसीटीवी होते हैं घरों में, वो यूजुअली सिक्योरिटी के लिए लगाए जाते हैं, ना कि एविडेंस के लिए। तो जो सीसीटीवी है, क्या वो उन्होंने अपनी टेरेस पे नहीं लगाया हुआ था? और अगर लगाया हुआ था तो टेरेस वाले सीसीटीवी की फुटेज कहाँ है? टेरेस पे क्या हुआ हमें क्या मालूम? जी, टेरिस पे तो पहले लगाएंगे। अगर हमारा सिक्योरिटी बेस देखा जाए तो लोग टेरिस से भी चोर आ सकता है, नीचे से मेन गेट से आ सकता है, तो टेरिस का तो मेन है, टेरिस में तो सीसीटीवी होना ही चाहिए। अगर वहां पर बोल रहे हैं आत्महत्या की जो भी बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली तो सीसीटीवी कहाँ पर है? इतने समझदार लोग हैं, उन्हें पता नहीं कहाँ कहाँ सीसीटीवी इंस्टॉल करना चाहिए। वो ये बोल रही है कि वो लोग अपनी बेटी को पंचतत्व में विलीन नहीं करना चाह रहे हैं। हम एक सेकंड, एक निष्पक्ष रीपोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, वो और आपने अगर पहले कह उनको दिया। इतनी अच्छा, चिंता अब हम उस बात पे आते हैं कि पेरेंट्स और उसके बीच के रिश्ते कैसे थे। पेरेंट्स और उसके बीच के रिश्ते कैसे थे ग्लैमर वर्ल्ड में आने के बाद और हाल ही में पिछले 6-7 महीने में? सर देखिए, पेरेंट्स, किसी भी पेरेंट का रिश्ता क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए कि उनका उस बच्चे से रिश्ता कैसा था। जो पेरेंट जिनके फादर की अभी लास्ट मंथ सर्जरी होके चुकी है हार्ट की, आप देख रहे हो कि उनकी मम्मी बार बार हर 20 मिनट में वो फेंट हो रही है। 2 दिन से उनका हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करा रहे हैं। वो पेरेंट्स से आप ये क्वेश्चन ही सर आप सोचिए कि ये तो बहुत ही गलत क्वेश्चन हो जाएगा कि हम उनकी उस पे क्वेश्चन उठा, उनके प्यार पे हम उंगली उठा रहे हैं सर। आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, जिस हिसाब से ये फैमिली है सर, सभी अपने बच्चों को प्यार करते हैं और कोई भी अपने बच्चे के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकता सर। तो माँ बाप के प्यार पे हमें क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। हम लोग, मुझे पता है आप लोग हमसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट ये ही आंसर है सर कि पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे से को परेशान नहीं करता है और उससे पैसा नहीं कमवाता है, जो ये लोग क्लेम करते हैं। मैं जो आरोप गिरिबाला सिंह ने लगाए हैं वही बता रहा हूं और उनसे बस आपका एग्जैक्टली रिएक्शन ले रहा हूं, क्योंकि यू नो द रियलिटी। आप ऑफ कोर्स पेरेंट्स को जानते हैं, आप तुषा को जानते थे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जब से वो प्रेगनेंसी हुई थी, जब से वो प्रेगनेंसी के बारे में उसे पता चला तो उसका बिहेवियर बदल गया। वो कह रही कि वो नहीं चाहती थी इस बच्चे को, इस वजह से वो अपने आप को हार्म कर रही थी, नुकसान पहुंचा रही थी, रो रही थी। क्या उसके बिहेवियर में बदलाव आया था? क्या आपको कुछ पता है इसके बारे में? इसके बारे में आप क्या कहेंगे मीनाक्षी? सर आप ये देखिए, अगर कोई लड़की अगर वो बोल रही है कि ये बच्चा नहीं रखना चाहती, उनके अकॉर्डिंग अगर बोल रही है, तो उसको इतना टॉर्चर मिला गया है। कोई लड़की चाहेगी कि उसके बच्चे का बाप ऐसा हो जो उसको परेशान कर रहा है, जो उसको हैरेस कर रहा है, जो ये बोल रहा है कि ये बच्चा किसका है? कौन लड़की चाहेगी कि वो ऐसे बच्चे को कैरी करे? ये तो वो खुद बता, ये तो हमारे पास प्रूफ है चैट में कि वो ऐसा बोल रहा है कि ये मम्मी ये मुझे बोल रहा है कि बच्चा किसका है। और वो इतना ज्यादा उसको हैरेस कर रहा है, उसको इतना परेशान कर रहा है, ह्यूमिलेट कर रहा है। तो कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि वो अपना एक ऐसा बच्चा पैदा करे जिसका बाप समर सिंह जैसा हो। कोई भी नहीं चाहेगा।
बिल्कुल, तो वही आप कह रहे हैं कि ये दिखाता है कि वो किस पीड़ा से गुजर रही थी। जी मैम, आप कुछ कहना चाह रही? इतना स्ट्रेस है, तीन ही बंदे हैं घर में, 3 पर्सन ओनली, उसमें भी इतना स्ट्रेस है आपस में, तो सोचे क्या माहौल होगा घर और का। सर मैं और उस माहौल में बच्चे का पैदा करना क्या, बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता, अगर हम भी उनमें से कोई होंगे तो हम नहीं चाहेंगे ऐसे ऐसे स्ट्रेसफुल माहौल में जहां पर सिर्फ टॉर्चर किया जाता है। बोलते ना, सोने का पिंजरा है वो बस। और सर मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी, काफी कमेंट्स ये आ रहे हैं, काफी लोग ये बोल रहे हैं कि पेरेंट्स लेके क्यों नहीं गए। हाँ हाँ, वो हम कह रहे हैं लोगों की उन्होंने क्यों कहा कि एडजस्ट कर लो, वो वापस क्यों नहीं लेके गए? जी, दिसंबर 9 दिसंबर को उसकी शादी हुई है, फेब में वो आई है उसकी, क्योंकि मार्च में भाई की शादी थी, 2 हफ्ते के लिए आई, फिर भी हमारे साथ थी, फिर मार्च में शादी थी, फिर भी रही, फिर उसके फादर की सर्जरी थी, फिर भी रही। वहां पे वो कितना रही है, मुश्किल से 1-1.5 महीने। और लोग जो ये सवाल उठा रहे हैं कि हम लोगों की गलती, हमने उसको बुला क्यों नहीं लिया, 1-1.5 महीने की शादी में भी हम उसको बुला ले। हर पेरेंट्स यही चाहेगा ना कि 1-1.5 महीने हुआ उसको उसके सामने रहते हुए, कि एक हिंदू फैमिली में इंसान यही चाहता है ना कि बच्चे, चलो ठीक है स्टार्टिंग में हर शादी में थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, 1-1.5 महीने में कोई कैसे डिसाइड कर सकता है कि ये फैमिली खराब है, तुम बेटा आ जाओ। हमने अपनी तरफ से, वो रही नहीं है सर वहां पे, वो अपने ससुराल में रही नहीं है ज्यादा, मुश्किल से अगर आप देखोगे कंटिन्यू उसका जो आप पीरियड रहा है वहां हमने भोपाल में देखे, रहने का, हाँ महीने का है। हमने देखे हैं कि उसके क्या टेक्स्ट आए थे पेरेंट्स को। क्या आप लोगों में से किसी को भी उन्होंने बताया था त्विषा ने कि क्या कुछ चला था उसके शादी के बाद? सैटरडे को वो अपनी माँ को 15 दिन से सर लोग जो क्वेश्चन उठा रहे हैं कि बेटी आपकी इतनी परेशान थी तो बुला क्यों नहीं लिया, हम ही लोग को। अरे सर 15 दिन में कोई नहीं जज कर सकता कि शादी सही है या गलत है, 15 दिन में कोई भी नहीं। उसका लास्ट सैटरडे को मेरे पास मैसेज आया है कि आई एम ट्रैप्ड, तू मत फंसना, मतलब वो किसी जाल में फंसी हुई है। आई एम ट्रैप्ड ब्रो, वो मुझे ब्रो करके बुलाती थी, तू मत फंसना। एंड उसके पीछे भी एक रीजन था। जब ये हमारे घर में बच्चियां जब बड़ी होती है तो उनके लिए रिश्ते आते हैं, तो बच्ची के लिए भी जब रिश्ता आया तो जो इतने क्लोज थे तो ये उससे अपना शेयर करती थी कि भाई ऐसा सा रिश्ता आया, मैं क्या करूं क्या। तो जब उसने अपना प्रोफाइल जब उसको भेजा तो बोलती आप ट्रैप मत होइए, मैं तो ट्रैप्ड हूँ, आप मत फंसिए, अभी इतनी जल्दी शादी तो करने की जरूरत नहीं है। यही खुद में बताता है आपको, अगर उसने आपको भेजा आई एम ट्रैप ब्रो तू मत फंसना, कि वो किस चीज से गुजर रही थी। मनीषा सर आप ये देखिए कि उसने, आप मतलब इस तरीके के मैसेज देती थी, वो ये बता रही थी कि यहाँ पे उसको वो फोन पे बात नहीं कर पा रही थी, मतलब ये एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा था उसके सामने कि वो फैमिली से बात नहीं कर पाए, और फोन करने में भी उसको डर लग रहा था कि अभी समर्थ है, मैं रुक करती हूँ तेरे को कॉल, अभी ये है मैं करती हूँ कॉल, इस तरीके का डर का माहौल था वहां पे। और सर ये सिर्फ 15-20 दिन की है घटना, ये ऐसा नहीं है कि काफी टाइम। घर तो तब लाया जाता है ना किसी को कि आप तुम परेशान हो, कि 2-3 महीने हो गए बेटी परेशान है, ये 1-1.5 महीने की चीज है। और ये सब प्लान था इन लोगों का, 15 दिन से प्लान चल रहा था सारा। सर एक चीज और, जो उनके लॉयर ने पब्लिकली उसमें अपने इंटरव्यू में बोला है कि अभी भी उसके 2 अमेज़न के पैकेट आए हुए रखे हैं, हमने तो पुलिस में वो सबमिट कर दिए। सो आफ्टर वी हैव चेक्ड, क्योंकि उनका जो अमेज़न अकाउंट है वो उनके भाई और ट्विशा उनकी मदर और उनके भाई का कॉमन अकाउंट है। तो हम लोगों ने कल रात को चेक किया कि व्हाट हैज शी ऑर्डर्ड, तो सर उसमें कलर्स हैं, पेंटिंग का सामान है, ड्राइंग का स्टैंड है, जो आप पेंटिंग करते हो वो वाला स्टैंड है, ड्राइंग की किट्स है, और पेंट ब्रशेस हैं। तो द गर्ल हु इज ऑर्डरिंग फॉर ऑल दीज किड्स, उसका ये माइंडसेट नहीं होगा कि वो जाके सुसाइड कर ले। ठीक ठीक, तो ये एक और बात है जो दिखाता है, जैसे आप कह रहे हैं कि वो सुसाइड थ्योरी को गलत ठहराता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आप जुड़े और आपने अपना जो वर्जन है और अपनी जो सच्चाई है वो हमारे बीच शेयर की। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ एक्स has accessed Twisha Sharma's first post-mortem report from AIIMS Bhopal. According to the AIIMS Bhopal report, the alleged nylon belt linked to the case was reportedly not produced during the autopsy process, a revelation that is now raising serious questions over the handling of evidence. The development has further intensified the controversy surrounding the case, with Twisha Sharma's family demanding a CBI investigation and a second autopsy. The family has alleged possible tampering. They've questioned whether all crucial material evidence was made available to forensic experts during the examination or not. As the SIT continues its probe, the focus is now sharply on forensic procedures, evidence management and the circumstances leading to Twisha Sharma's death.
Siddharth is joining us for more details on this story. Siddharth Rege, what are the discrepancies which are coming to forth in this AIIMS Bhopal report? So this is the first post-mortem report that we have accessed, and it has been dated as 13th May 2026. So talking about the discrepancies, the first discrepancy on the basis of which the family is seeking a re-examination is right here. It says the ligature material was neither present nor submitted by IO for examination by us. We've seen the CCTV visuals in which you can see Twisha carrying this material or this band, the resistance band that is used for exercise while going upstairs to the terrace. So this material, as to why it wasn't present, is clearly mentioned here in this particular post-mortem copy that we have received. Now, the second point of contention that has been spoken of as well, the time since death is within 6 hours from preliminary examination done at 1:59 a.m. So, the timeline also has been a point of contention as far as Twisha's family is concerned, because they claim that firstly the body was brought to the hospital without informing the police, and there's been significant delay which has caused a lot of discrepancies to be created in this particular case as well. So this is the post-mortem report that we've accessed, which has been filed by the AIIMS in Bhopal. Absolutely. We're putting this out on NewsX, of course, exclusive there. Let me in fact bring in Chetan Seth as well. Chetan, the original post-mortem report has been accessed by NewsX. Give us more updates on what it contains and what the family is not happy about, Chetan. देखिए, एक बार फिर कई सारे सवाल हैं, क्योंकि एक बार नहीं दो बार जो है पूरे मामले को लेकर जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी वो आ गई। पहली रिपोर्ट पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि त्रिशा ने हत्या की, उसकी हत्या हुई है या आत्महत्या की है, इसको लेकर तमाम सवाल थे। और भोपाल पुलिस के जो अधिकारियों ने जहां पर जांच की थी, वहां पर जिस बेल्ट से जो है त्रिशा ने आत्महत्या की है उसका जो है सैंपल कलेक्ट नहीं किया गया था। यही कारण था कि परिवार बार बार मांग कर रहा था कि जो है जो जांच रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की वो सही ढंग से नहीं आई, तो दोबारा जांच करने की मांग कर रहा था। और इस पूरे मामले को सेंट्रल जांच एजेंसी और दिल्ली एम्स में ट्रांसफर करने की बात कही जा रही थी कि जो प्रदेश की जो भोपाल की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट से परिवार नाखुश है। एसआईटी इस पूरे मामले में गठित हुई और एसआईटी ने कल एक बार फिर जिस पट्टे से यानी कि जिस बेल्ट से त्रिशा ने आत्महत्या की थी उसका सैंपल कलेक्ट किया और एफएसएल की टीम को दिया, जिसकी रिपोर्ट आज आ गई है। उस रिपोर्ट में दो बातों का जिक्र है। एक बात का जिक्र है कि त्रिशा के गले में जो है कुछ निशान है, हालांकि बंद निशान है, और निशान के साथ साथ जो रिपोर्ट में आई है कि जिस बेल्ट का एफएसएल की जांच के लिए भेजा था उससे वो रिपोर्ट जो है मैच होती है, यानी कि जो बेल्ट दिया गया था और त्रिशा के गले में जो निशान है वो उसी बेल्ट से और उसी बेल्ट से आत्महत्या त्रिशा के द्वारा की गई है। ये अभी तक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, लेकिन परिजन इस रिपोर्ट से नाखुश हैं। परिजनों का साफ कहना है या तो जो है दिल्ली में एक बार फिर पीएम कराया जाए ताकि जो प्रदेश की जो रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं और दूध का दूध पानी का पानी हो सके, क्योंकि दोनों तरफ से अलग अलग बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। एक तो आप मौत का डेट में अंतर भी आप देखेंगे कि 12 तारीख को 10 बजे बताया जा रहा है कि त्रिशा की मौत हुई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में आप डेट देखेंगे तो उसमें 10 तारीख को शाम 7:18 तो बहुत से सवाल हैं, बहुत से सवाल हैं जो परिवार उठा रहा है। चेतन, फिलहाल के लिए शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। अब बहुत से सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। क्वेश्चंस आर कंटिन्यूइंग टू सराउंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ Twisha's death. Attention is turning not just to the medicines found in her prescription but also to the timeline of the investigation itself. Forensic experts say when a body remains unattended for several days before a post-mortem is conducted, natural decomposition can significantly complicate the investigation. So what happens to a body after several days, and why does a delayed post-mortem pose such a major challenge for investigation? Well, we of course are going to tell you these details about what the post-mortem report has revealed. Let's quickly put those out. Anti-mortem hanging, of course, by ligature.
This is something that the post-mortem revealed. Also, ante-mortem multiple injuries as well. Ante-mortem, remember, of course, refers to before death. So those injuries have also come out in Twisha's post-mortem report. Ante-mortem injuries possibly by blunt force over parts of the body, especially hands and ears are there as well. Also, blood and viscera samples have ruled out any sort of concomitant intoxication. That's something that has been ruled out by this post-mortem report. She also underwent medical termination of the pregnancy 1 week before death. That is something also that the post-mortem is indicating. Ligature material not provided to doctors as yet though. So these, of course, are some details coming out. Dr. Rahul Bhargav is also with us now on the broadcast, and in fact we're going to put the question to him, of course, on the results of this post-mortem and what he makes of it. He's Principal Director and Chief of Hematology at FMRI. Dr. Bhargav, your first inference of the post-mortem, also the doubts, the question marks that the family has raised as well on it. So first of all, we have to realize that fact that the dead bodies never tells you lie. They always speak truth. And with that, we need to have eyes and the ears to pick up the truth from the deceased person. And at this present moment of time, what has been shown that there has been a ligature mark on the neck or the nylon belt which has been found, and some previous history of abortion a couple of weeks back. But what has been there is that ante-mortem, it is hanging by death. The rest of this is all speculation. What has driven a person to hang themselves? There is nothing. I mean, it can also tell you that was hanged after the death or before the death. But what it shows is that it was done before. So it has been a case of hanging by death, and that is what the post-mortem reveals at this moment of time. The rest is all speculation and rhetorics between the families, what needs to be done, what has driven to the person to this extent. Do you see a need for a second post-mortem? The family is asking for a second post-mortem. Do you believe that need is there? Always a suspicion whenever the findings are contrary to what is you have been believing, we tend to demand for second opinions and other things and a second post-mortem. So I think what is required to understand that we have to have faith from All India Institute of Medical Sciences where the post-mortem was done, which is the government authorities, and we need to have almost a blind trust to these authorities who does post-mortem. And we have to also realize this fact that neither of these things can be influenced by any of the parties on the forensic part of it. So we keep forensic people of highest credibility in the system, and people can ask for the second opinions, that's their right, but it is up to the government and the government bodies to go for it, to search all the doubts being kept into the family's mind, because both the parties will have their own versions of either domestic violence and so on and so forth, the injuries, the bruises. They have to be all interpreted from the circumstantial evidences of where the body has been found and what has been going on in the past 2 weeks to understand the bruises. And to such an extent that the bruises, the color of the bruises can also tell you how the injury and when was the time of the injury. And then, of course, there will be questions on whether another post-mortem can actually be accurate or not, because it is being done after so many days, of course, of the death occurring. All right, I have to leave it at that. We've run out of time. Dr. Bhargav, thank you for joining us with your perspective. Let's take a short break.